Hi, my soul family. I hope you are doing great. Pick Angelic Ruder welcomes you. I hope आप सब ठीक हैं, खुश हैं. मैं फिर से आ गई हूँ with your beautiful favorite topic. Will your manifestation turn into reality? So, are you walking on the right path? I'm sure you are excited about it. So, yeah, please cooperate. I will be speaking in both languages, English and Hindi. So, मैं आ गई हूँ आपके लिए ढेर सारा प्यार लेके, आपकी दुआएं जो भी आप कर रहे हैं, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं. और काफ़ी लोग मुझसे यही पूछते रहते हैं, क्या मैम मेरी मैनिफेस्टेशन रियलिटी में कन्वर्ट होगी, क्या मैं जो मैनिफेस्ट कर रही हूँ वो होगा, कब होगा, मुझे क्या करना चाहिए कि वो हो. सो आपके ढेर सारे सवालों के जवाब आज ये वीडियो देने वाली है. सो आई एम श्योर आप रेडी हैं. सो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, जो लोग मुझे ऑलरेडी जानते हैं तो उनको पता है मैं एंजेलिक रीडर हूँ, जो कि मेरा फर्स्ट चैनल है. और अगर आप मेरे पहले चैनल से आ रहे हैं, आई लव यू एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग इन. और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, इफ़ यू वॉचिंग दिस चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम, वेलकम टू माई सोल फैमिली. एंड दिस इज़ माई फर्स्ट चैनल एंजेलिक रीडर, which is where I'm coming live every day. You can join my everyday live session where I'm answering you about your current energies, updates regarding everyday life and guidance, whatever you want to know. You can join in that live session. I'm coming every day. Rest, this is my second channel, Pick Angelic Reader. Here I'm going to bring in detailed videos for you regarding different aspects of your life. So whatever question you want to suggest me, you can suggest me in the comment section. I will surely make your videos and stay notified about the upcoming videos. All right, so make sure you subscribe to the channel and hit the notification bell so that you are notified about my upcoming videos. So yeah, without any further ado, let's get started with this session. May God bless you all. So शुरू करते हैं. आपको बस पेशेंस रखनी है. मैं इंग्लिश हिंदी दोनों भाषा में बोलूँगी और बने रहो और अपनी रीडिंग को एंजॉय करें. सिट बैक, रिलैक्स एंड लेट्स बिगिन. So we have card number 1, enjoy success and happiness, the sun. Card number 2, magic guardian, unlock the magic within. So take your time and see which card you feel most drawn to. Please pick the card intuitively wherever you feel drawn to. Don't pick the card by using your mind. Pick the card which is calling you. That's where your energies will match and you will get the correct answer. So कोई जल्दी नहीं है. Take your time. You can pause the video if you want. वही कार्ड चुने जहाँ पर आपको अट्रैक्शन हो रही है, जो कार्ड आपको अपनी तरफ खींच रहा है, जहाँ पर आपको खिंचाव हो रहा है, क्योंकि वहीं आपकी एनर्जीज मैच करेंगी, वहीं आपको आंसर मिलेगा. अगर आप दिमाग से चुनोगे तो आंसर नहीं आएगा, आपकी एनर्जीज मैच नहीं करेंगी. अगर आप वही कार्ड चुनोगे जहाँ पर आपको खिंचाव हो रहा है, तो वहीं आपको करेक्ट आंसर्स आएंगे. ठीक है. सो लेट्स बिगिन. गॉड ब्लेस यू ऑल. Hi, card number 1. Those who have chosen this sun card, enjoy success and happiness. So let's see what is going to be reading. All the best. First of all, right off the bat, what I'm seeing in your card is probably you are already someone who is enjoying the success and happiness. You are already abundant and you are already going through that happy phase. And you are already rising, shining, or might be you already finding that spark in your whatever you are manifesting. And or might be you are hopeful about that, you're positive about that. So this can be your energy that you are a fire sign, Aries, Leo, Sagittarius, or this can be anyone's zodiac sign if you are asking about some person. So this is a very fiery energy, passionate energy, full of passion. And if you are a bit of if you think that you are having some aggressiveness or some angry energy somehow around you, it can be yours or anyone regarding which you are asking about whatever you're manifesting. That anger issue or some aggressive nature can be a reason of you're blocking your manifestation. So make sure you don't do this. Take care of this thing. I just got that message intuitively. Rest, this is a very fiery and passionate energy. So be enthusiastic, be passionate, be hopeful, be positive is an energy if you are expecting to enjoy success and happiness in whatever you are manifesting. Okay. And stay positive, stay in a very positive energies. If you are not
then you need to, this is the guidance for you. And if you're already in this energy, then this is a very beautiful energy to see, and might be this is going to bring you success and happiness very soon, or it is just on the way to you, or you are already doing it, you're already getting it. Okay, you're already enjoying that passion, that spark. Okay, all right. So for some of you, you can be healers, you can be light workers, because sun is a light. Sun brings in light to the whole world. Sun heals everyone. Sun strengthens everyone. Sun spreads positivity and light. So probably you might be a light worker, a healer. You are a source of light to others. You heal others. Wherever you go, you just enlighten others' world. Wherever you go, you enlighten the room. So you strengthen others, you motivate others. So you can be motivational speaker, a healer, a spiritual teacher. You are a source of light. You are a light worker in any way, in any shape or form. So this, if it is not your Aries, Leo, Sagittarius can be a zodiac sign. If it is not even your zodiac sign, simply you have that masculine energy of taking action and just action oriented, just being in your practicality and not getting too emotional, but just being passionate or actively doing what you are supposed to do, and a very high energy, high vibrations, energetic energy, right? So this is a message for you. So if you're resonating with this energy, then keep watching, and whatever you are manifesting, let's see, is it turning into reality? Regardless of whatever I'm saying, this can be your energy or anything around the manifestation, whatever you are manifesting. So take it as it resonates. सो जिन्होंने ये कार्ड चुना, बहुत ही प्यारा कार्ड है. एरीज, लियो, सैजिटेरियस आपका ज़ोडिएक साइन हो सकता है या किसी का भी हो सकता है, चाहे आपका ज़ोडिएक साइन कुछ भी हो. मेन मैसेज है कि आपके अंदर वो एक पैशन है, एक जुनून है, जो भी आप कर रहे हो उसमें आप ऑलरेडी है या आप करना चाह रहे हो, और आपकी कुछ लोगों के लिए आप ऑलरेडी कामयाब हो, खुश हो, कुछ हासिल कर रहे हो, ऑलरेडी आप सक्सेस अचीव कर रहे हो, हैप्पी हो, आप अच्छी एनर्जीज में हो, आप पॉजिटिव हो, आपको हर क्लैरिटी मिल रही है, आप हील हो रहे हो या आप दूसरों को कर रहे हो. जो भी है, आप में से कुछ लोग टैरो रीडर्स, लाइट वर्कर्स, हीलर्स, या कुछ भी आप ऐसा कर रहे हो कि आप दूसरों के लिए एक रोशनी हो, दूसरों की ज़िंदगी में उम्मीद की किरण लाते हो, आप दूसरों को मोटिवेट कर रहे हो, आपकी कुछ भी काम कर रहे हो लेकिन आपकी एनर्जीज बढ़िया हैं और आप पूरा जोश में हो, जुनून में हो, एक प्रॉपर आपके अंदर वो इंस्पिरेशन है, मोटिवेशन है काम करने की, आप अच्छी एनर्जीज में हो. ठीक है, फुल ऑफ एनर्जी, ये आपकी एनर्जीज़ हैं. अगर नहीं है तो आपको ये गाइडेंस हो सकती है जो कि आपको सक्सेस और हैप्पीनेस तक ले जा सकती है, जो कि आपकी मैनिफेस्टेशन रियलिटी में कन्वर्ट करने में आपको ये गाइडेंस हो सकती है. और अगर कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी आप ऐसी एनर्जी में हो, बट सनराइज, ओके, सुबह जल्दी उठने की एनर्जी हो सकती है, सुबह जल्दी उठना. दिस ऑल्सो टॉक्स अबाउट एनलाइटनमेंट, अवेकनिंग्स, गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, जल्दी उठना, सूर्य उदय, सूर्य को नमस्कार करना, सूर्य को जल चढ़ाना हो सकता है. योर रूलिंग प्लैनेट कैन बी सन, कुछ काफ़ी लोगों का आपका रूलिंग प्लैनेट सन हो. ठीक है, दिस इज़ अ डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी. माइट बी फॉर सम ऑफ यू, यू आर मैनिफेस्टिंग अ डिवाइन मैस्कुलिन, और दिस कैन बी योर ओन एनर्जी. प्लीज़ टेक इट एज इट रेजोनेट्स. सो या तो आप किसी पर्टिकुलर डिवाइन मैस्कुलिन को लेकर कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो कोई भी मैस्कुलिन ज़रूरी नहीं मेल होता है, कुछ लोगों के लिए आप कुछ मेल पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे हो, या फिर ये आपकी एनर्जी हो सकती है. इट डजंट हैव टू बी अ मेल और अ फीमेल, इट्स जस्ट एन एनर्जी. मैस्कुलिन वो होते हैं जो ज़्यादा इमोशनल होकर नहीं चल रहे, प्रैक्टिकली चल रहे हैं, बस काम कर रहे हैं. इट्स जस्ट डूइंग एक्शन, कुछ करना, बस जुनून से कुछ काम करना, कुछ करते रहना, एक्टिवली पार्टिसिपेट करना. एक सुस्ती से बैठे नहीं हुए, बस कुछ कर रहे हो, जोश में लगे हुए हो. ठीक है, ढीलापन नहीं है, ऐसा आपकी एनर्जीज अच्छी हैं. अगर नहीं है तो ऐसा आपको करना, ये गाइडेंस हो सकती है. ठीक है, सो प्रैक्टिकली चलना और ब्राइट लाइट में रहना, पॉजिटिविटी में रहना. सो दूसरों के लिए एक रोशनी का कारण बनना, उम्मीद का कारण बनना, ऐसी एनर्जीज़ हैं. अब यहाँ तो ये आपकी एनर्जीज़ हैं, या जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उसको लेकर गाइडेंस हो सकती है. और अगर आप किसी पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो ये उसको लेकर हो सकता है, जैसा मैच करें. लेट्स सी नाउ, क्या आपकी मैनिफेस्टेशन रियलिटी में कन्वर्ट हो रही है, क्या आप सही रास्ते चल रहे हो, और अगर उसको लेकर कोई गाइडेंस है वो भी निकालेंगे. सो लेट्स सी, आर यू वॉकिंग ऑन द राइट पाथ, इज योर मैनिफेस्टेशन टर्निंग इनटू रियलिटी, एंड
what is the guidance to make it happen. So let's see. And so far, if you think you are resonating with this energy, then keep watching, else you are free to check out the another card as well. ओके अगर आपको ये लगता है कि एनर्जीज आपके साथ मैच कर रही हैं, चाहे आपने जो भी है, अगर आपको लग रहा है कि आप इसके साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं, आपने ये कार्ड चुना है तो देखते हैं, नहीं तो आप दूसरा कार्ड चेक कर सकते हैं. ओके, so the first message for you is get more information. So probably you need to get more information from someone or gather some information regarding this. Probably you are not having proper clarity about it, lack of clarity, so you need to get to know the complete clear picture. For that you need to get more information, or might be if you're getting some information from someone that might not be a clear picture, you need to get some clarity in some way. सो यहाँ पर आपके लिए स्ट्रांगली मैसेज है, आपको इसको लेकर और इन्फॉर्मेशन गेन करनी है. शायद आपको अच्छे से अभी इन्फॉर्मेशन नहीं है. फॉर एग्जांपल आपको पढ़ाई करनी है, कोई नॉलेज गेन करनी है, उसको लेकर आपको क्लियर होना ज़रूरी है. और उसके लिए आप किसी, फॉर एग्जांपल अगर आप स्टूडेंट हो, आप टीचर, कोई कोर्स कुछ कर सकते हो, ठीक है. और अगर आप किसी पर्सन को लेकर आपको इन्फॉर्मेशन क्लियर नहीं है, आपको लेने की ज़रूरत है, तो उसके लिए कम्युनिकेशन. सो अगर मान लो आपको कोई इन्फॉर्मेशन भी मिल रही है, तो हो सकता है आपको अगर कोई पर्सन नहीं सही इन्फॉर्मेशन दे रहा, जिसकी वजह से आपको क्लैरिटी नहीं है, कुछ मिसकम्युनिकेशन है, तो आप एक बार बात करके आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी जिससे आपको क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है. कुछ ऐसा मैसेज. तो कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी जिससे कि कोई पॉजिटिविटी आएगी या आ रही है या आ सकती है, ठीक है. सो लेट्स सी व्हाट एल्स. वेट. सो एंजल्स आर आस्किंग यू टू हैव पेशेंस. वेट. आपको थोड़ा सब्र दिखाना है और जल्दबाजी में नहीं कुछ करना और सब्र दिखाना है, ठीक है. अगर आप गुस्से से बात करते हो, जैसे मैंने पहले ही आपको बोला था कि अगर आप गुस्से से बात करते हो, आप हार्श बिहेव करते हो, आप रिएक्ट करते हो, वो बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि वो आपकी मैनिफेस्टेशन में ब्लॉकेज है, उसको आपको वो नहीं करना, ठीक है. और अगर आप किसी को मना कर रहे हो किसी चीज़ के लिए कि नहीं, तो मतलब अगर मना भी करना है तो प्यार से करना है, लड़ के नहीं करना, किसी को हर्ट नहीं करना. और अगर कोई आपको मना कर रहा है, आपको हर्ट कर रहा है, आपने बहुत पेशेंस रखी, लेकिन वो आपको हर्ट कर रहा है, तो फिर आपको शायद आपको क्लैरिटी नहीं है कि क्या है. आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कुछ ऐसा, या फिर आपको बात करके लेनी है या फिर देनी है, जैसा मैच करे. आइदर यू नीड टू गेट सम इन्फॉर्मेशन फ्रॉम समवन और यू नीड टू गिव some information to someone. Okay, take it as it resonates with your situation. So if you have been waiting for someone to clear you something and that person is not coming forward, they are resisting and they are probably some lack of communication or a harsh communication or harsh behavior from someone, or this can be your energy, then please make sure communication is needed to get the clarity or give the clarity, because that is creating some sort of issue over here. So if you've been waiting for someone but someone is resisting, they are hurting, so then probably you need to get more information to be clear about it, or you need to give information, or might be you have given some information, something on those lines, but you need to have patience. And if you are putting someone on hold, someone has been waiting for you, but you are resisting, you are hurting, then you need to give that person an information. Probably they are expecting some clarity from your side, so take it as it resonates. But overall I'm feeling some patience is required in order to bring in clear communication and loving energy, and not reacting without even knowing the complete clarity. So not reacting unless you are very much clear about what it is. So dealing with the situation lovingly, patiently is a message, and lack of clarity or miscommunication can be a reason. In order to, this has to be worked on in order to achieve this success and happiness, in order to make your manifestation into reality. Okay, so this is your guidance. सो ये आपके लिए गाइडेंस आ रही है. एक तो अगर आप सब्र नहीं रखते हो तो आपको सब्र रखना है, जल्दबाजी में काम ख़राब नहीं करना, प्यार से बात करनी है, खुलकर बात करनी है, इन्फॉर्मेशन लेनी है तो लो कोई भी चीज़ की,
कोर्स करना है, पढ़ाई करनी है, जो भी है, और अगर किसी को कोई इन्फॉर्मेशन देनी भी है तो प्यार से दो, ठीक है। अगर आप किसी से चाह रहे हो कि कोई वेट करे, सब्र दिखाए, आपको सपोर्ट करे, तो आपको प्यार से बात करनी है, खुलकर क्लैरिटी देनी है। तो प्यार से बैठकर खुलकर बात करने से चीज़ें सॉल्व होती हैं, ऐसा मैसेज, ठीक है। अगर कोई वेट कर रहा है, आप उसको वो तभी वेट करेगा जब आप उसको प्यार से क्लियरली बात क्लियर कर रहे हो। इन्फॉर्मेशन दो अगर आपको देनी है, और अगर लेनी है तो फिर सब्र रखो, आपको मिलेगी। जल्दबाजी में रिएक्ट मत करो, ठीक है। अगर कोई हर्ट कर रहा है, स्पेस कर लो, अगर आप हर्ट कर रहे हो तो मत करो। सो आपको ये समझना है, अगर आपने किसी को बहुत वेट कराया है और कोई गुस्से में आ रहा है क्योंकि उसका सब्र का इम्तिहान आप ले रहे हो, तो आप उसको प्यार से गाइड करो, ठीक है, हर्ट मत करो, ऐसा। और अगर ये आपकी एनर्जी है कि आपने बहुत सब्र रख लिया लेकिन आप इम्पेशेंट हो रहे हो, आप रिएक्ट करो, तो गुस्से में नहीं आना, उसको लेकर कोई क्लैरिटी ले लो, या आपको मिलेगी, आप सब्र दिखाओ, बट इन एनी वे पॉजिटिव रहो, अपनी हीलिंग पे फोकस रखो। जितना आप हील होगे उतना आप दूसरों को हील करोगे। सो आइदर you need to heal yourself in order to heal others, okay, or you need to just if you are hurting someone in some way by not communicating properly, or by communicating harshly, or hurting someone without giving them clarity or putting them on hold, then you need to move forward, take action, clear communication, lovingly, and making someone understand, so that they can have patience with you, and you need to heal the pain you have caused to someone, so that you can turn this manifestation into reality. You can enjoy success and happiness in the situation. So this is the guidance for you, okay. So let's see what else. And like I said, angels asking you to remain positive, whatever it is. If you really want to manifest this, so manifestation works only when you are in a positive energy. So the more you are positive about the situation, you bring in positivity by positive communication, positive communication, positive mindset, you attract more, okay. So that's how you can turn your information into manifestation into reality. And angels are saying it is working behind the scene, stay positive. सो जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो वर्क हो रहा है, चाहे आपको दिखे या ना दिखे। और अगर आपको दिख रहा है तो आपको पता ही है, आपको हर हाल में पॉजिटिव, बस इसी एनर्जी में, अगर आप ऑलरेडी हो तो आप इसी में बने रहो, मेंटेन रखो इस एनर्जी को। अगर नहीं हो तो पॉजिटिव रहो कि ये आपकी मैनिफेस्टेशन वर्क कर रही है, चाहे आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा। जितना पॉजिटिव रहोगे उतना आप इसको रियलिटी में कन्वर्ट कर रहे हो, ठीक है। तभी आपने ये सन कार्ड चुना है, ठीक है। अपनी हीलिंग पे फोकस रखो, हर चीज़ को लेकर क्लियर होना और पॉजिटिव रहना, ठीक है। अपनी एनर्जीज़ अच्छी रखना, तभी आपकी एनर्जीज़ अच्छी होंगी, तभी आप दूसरों की एनर्जीज़ अच्छी करोगे। अगर आपकी खुद की एनर्जीज़ अच्छी नहीं, आप दूसरों को अच्छी एनर्जीज़ नहीं दे रहे हो। और अगर किसी की एनर्जी अच्छी नहीं, आपने उसकी एनर्जी नहीं लेनी, आपने अपनी अच्छी एनर्जी में रहना है, ठीक है। पेशेंटली वर्क करना है, रिमेन पॉजिटिव, लुक फॉर द साइंस। तो डेफिनेटली एंजल्स आर गिविंग यू सम साइंस, एंड you need to pay attention to them and learn out of that situation. And this is basically, for me, this is a sudden divine intervention, a sudden change, a sudden epiphany. It's like a sudden epiphany, it's like a tower card, okay. So sudden changes in some way. So yeah, I'm again and again getting an energy of aggressiveness, anger, ego, angry, ego, aggressiveness, reacting suddenly. So some sudden shocking news, something like that. So that's like I'm getting an energy of calm down, calm down. That's an energy I'm feeling. So आपकी रीडिंग में गुस्से की एनर्जी काफ़ी सेंस हो रही है। अगर आप गुस्से में आके एकदम आग बबूला हो जाते हो, यहाँ पर रिएक्ट कर जाते हो, जैसे कोई शॉकिंग न्यूज़ आपको मिलती हो, या आप किसी को शॉक कर देते हो, कुछ आप ऐसी आपकी कोई बिहेवियर पैटर्न हो सकता है, या आपकी सोच हो सकती है, या किसी की भी एनर्जी हो सकती है आपके आसपास। तो यूनिवर्स साइंस दे रहा है आपको, यूनिवर्स के साइंस पे फोकस करना है, ठीक है। गुस्से में नहीं आना, रिएक्ट नहीं करना, पॉजिटिव रह के सिचुएशन को डील करो, ठीक है। जैसे यहाँ पर किसी की जैसे दुनिया ही हिल जाती है, हो सकता है ये लिटरली टावर कार्ड है, जो ब्रेकअप का कार्ड, या कोई मुझे अर्थक्वेक की एनर्जी पता नहीं क्यों सेंस हो रही है। बेसिकली कहने का मतलब है कि अगर आप किसी को ऐसे कुछ भी ऐसे बोल के या कुछ करके, या कुछ आपका कम्युनिकेशन ऐसा हो, या कुछ जो किसी को ऐसे डिस्टर्ब कर देता हो, किसी की एनर्जी, तो
उसकी वजह से आप अपनी मैनिफेस्टेशन को ब्लॉक कर रहे हो, ठीक है। और अगर ये आपकी एनर्जी नहीं है, किसी और की है, तो आपको उसको पॉजिटिव करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं से उसको आपकी एनर्जी भी आ रही है। अगर आपने किसी को ऐसे किया और अगर कोई आपको ऐसे कर रहा है, तो फिर उसकी एनर्जी कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। अगर आप मैनिफेस्टेशन जो भी कर रहे हो, आपको कहीं ना कहीं लैक ऑफ कम्युनिकेशन या मिसकम्युनिकेशन है, उसको पीसफुली रिजॉल्व करो, क्लियर कम्युनिकेशन करके। आपकी एनर्जीज ठीक नहीं है तो खुद को ठीक करो। अगर आप सामने वाले की आपने ख़राब किया तो आपका फ़र्ज़ है उसको जाके ठीक करना, तभी ये वर्क करेगी। सो जैसा मैच करे, ठीक है। बाकी यूनिवर्स आपको साइंस दे रही है, आपको समझना है यूनिवर्स क्या साइंस दे रही है, उसके अकॉर्डिंगली आपको चलना है और पॉजिटिव रहना है, ठीक है। और देखते हैं। सो अगेन सेम मैसेज, आस्क योर एंजल्स। मान लो आप कुछ लोग जिससे भी आपने कुछ पूछ रहे हो, या तो आपको किसी को कुछ पूछने की ज़रूरत है, कोई क्लैरिटी लेने की ज़रूरत है आपको, क्योंकि आप डार्क एनर्जी में हो, ठीक है। सो अभी आपको इस डार्क एनर्जी से निकलना है। आप किसी से कुछ पूछ रहे हो तो या आप पूछ सकते हो, ठीक है। जो भी आप पूछ रहे हो या पूछ सकते हो। मुझे मेन मैसेज आ रहा है आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है, एंजल्स आपको साइंस दे रहे हैं। सो आइदर यू नीड टू आस्क समवन, टेक हेल्प फ्रॉम समवन, यू विल गेट द क्लैरिटी, or you need to, clear out some dark energy from wherever it is. There is some dark energy coming from somewhere, like suddenly someone interferes or some interference which brings in this dark energy. So you are in dark somehow, you are living in illusion somehow. There is some illusion or dark energy from somewhere somehow. So probably somebody is cutting, you need to cut the cord with someone. Somebody is trying to cut the cord, or you need to cut the cord with someone which is not making this happen, which is causing delays. So that's an energy I'm feeling, okay. So some dark energy is there, it can be yours or someone's around your manifestation, whatever you're manifesting. So you need to either take someone's help, get some information, ask someone, and you will get to know the clarity. Angels will throw light on the things. Angels will give, they are already giving you signs and they will give you signs, okay. That's a message. Or might be you said something to someone that was awakening, eye opening to someone, or someone said to you something that was awakening or eye opening to you, something on those lines. So or might be if you are consulting, talking to someone, and somebody is not guiding someone correctly, which can be yet another reason. So please take it as it resonates. Multiple situations coming along, because everybody is having their own situation. Please take it as it resonates with your situation, as it's a general reading. सो यहाँ पर आपको, आप डार्क एनर्जी में कोई तो हो, कोई धोखे की एनर्जी में हो, कोई आपके अच्छे अंदर एनर्जीज नहीं है, वो आपकी खुद की हो सकती हैं, या फिर आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो उसकी सिचुएशन में किसी कहीं से भी ये डार्क एनर्जी हो, आपको एंजल साइंस दे रहे हैं, रोशनी डाल रहे हैं, तभी सन कार्ड आ रहा है। तो आपको बिल्कुल क्लियर रहना है हर चीज़ को लेकर, अंधेरे में नहीं रहना, कोई डार्क एनर्जी में नहीं रहना। और आपको यूनिवर्स साइंस दे रही है या देगी, तो अवेकनिंग्स है ये, आंखें खुलनी, लाइट में आना, डार्क एनर्जी से निकल के लाइट में आना, रोशनी में आना, क्लैरिटी लेना या देना, जो भी है, जो चीज़ें आप नहीं देख पा रहे हो, जो भी इल्यूजन है, ठीक है। कुछ डार्क एनर्जी है, अपनी हीलिंग करो, किसी की हीलिंग करनी, जो भी आप कर रहे हो, या आपने किसी को तकलीफ़ दी उसको हील करना आपका फ़र्ज़ है। अगर कोई आपको तकलीफ़ दे रहा है, आप अपनी सेल्फ हीलिंग पे फोकस करें, प्यार से डील करें। सो ये एनर्जीज़ हैं, ठीक है। फिर अब ये कार्ड आ गया रोमांस का, तो काफ़ी लोग हो सकता है आप रोमांटिक रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे हो। majority of you, probably you are manifesting some romantic relationship, and for others of you this can be literally some partnership, some contract, or dealings with anyone. It can be your child, it can be your family, it can be about conceiving. So everybody is having their own situation. Take it as it resonates. This can be anything. Take it as it resonates with your manifestation, okay. कुछ लोगों के लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कोई डिवाइन मैस्कुलिन, लाइक आई सेड, कोई चाह रहा है उसका बच्चा हो जाए, कोई कंसीव करना चाह रहा है, कोई बेटा चाह रहा है, या कुछ कोई डिवाइन मैस्कुलिन लिटरली अपना स्पाउस, पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहा है, उसको लेकर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कोई आपकी तरफ एक्शन लेगा, या आप उसकी तरफ एक्शन लेना चाह रहे हो, अगर ये आपकी एनर्जी है। सो अगेन द सेम मैसेज, डीलिंग विद ईच अदर लविंगली, ओके।
So but there is some interference between the two people, some sudden interference is the same message. It can be some child, some mother, some child womb, something like childhood trauma or something related to child, some child womb, mother child, or it can be some sibling, you know, mother's child or child of mother, something like that. और ऐसा भी लग रहा है, मान लो कोई दो लोगों के बीच में इंटरफेरेंस दिख रहा है, मान लो आप दोनों आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं हो, आपके बीच में कोई आता है, आप किसी के थ्रू कनेक्ट मत करो, सीधा आपस में कनेक्ट करो, क्योंकि आप बीच में किसी को ला रहे हो, वो इंटरफेरेंस काम ख़राब हो रही है। प्यार दोनों तरफ से है लेकिन बीच में कोई इंटरफेरेंसेस है, कुछ तो बीच में आ रहा है, वो चाहे बच्चा हो या कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा हो किसी का, या फिर कोई मदर चाइल्ड की एनर्जी है यहाँ की, या फिर किसी की मदर हो सकती है, या किसी की कोई बच्चा है यहाँ पर, या फिर कोई सिबलिंग हो, कुछ भी हो सकता है। सिबलिंग मीन्स आपकी मदर का ही सेकंड बेबी, फॉर एग्जांपल बचपन का कोई दोस्त हो सकता है, या कोई भाई बहन, या कुछ भी ऐसी एनर्जी हो सकती है, ठीक है। सो कुछ लोगों के लिए ऐसी एनर्जीज़ हैं, या कोई पास कनेक्शन हो किसी का, आई डोंट नो इफ़ इट मैचेस, बट ये कार्ड बोलता है प्यार से आपस में फेस टू फेस डायरेक्टली डील करना, कोई इंटरफेरेंसेस नहीं लाना जो आपके बीच में सडन प्रॉब्लम्स क्रिएट कुछ हो रही हैं या हो सकती हैं, ठीक है। So I'm basically getting an energy like I'm feeling like don't allow the external factors to manipulate your or to pollute your energies or relationships, whatever it is, which is causing issues, because there is love from both sides. If you're manifesting some love relationship, there is love from both sides, but the energies from outside factor is affecting this. So somebody is waiting on you. You need to just take a step forward, or if you've been waiting, then you need to take a step back and let it be, and but patiently work on it, okay, lovingly. So don't allow external energies to affect your manifestation, because it's a blockage. So release that, don't allow it to impact your manifestation, okay. That's why it is like be clear your aura and stay positive, be in your energy, so that your manifestation can turn into reality. That's how the situation will improve. तो आपकी सिचुएशन इम्प्रूव होगी। आप ये गाइडेंस साथ में फॉलो करनी ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं मैनिफेस्टेशन रियलिटी में कन्वर्ट हो, ठीक है। एंड योर आंसर इज़ येस, योर मैनिफेस्टेशन इज़ टर्निंग इनटू रियलिटी एंड इट इज़ वर्किंग आउट फॉर सम ऑफ यू, एंड इट विल बी वर्किंग आउट फॉर सम ऑफ यू, इट्स ऑलरेडी वर्किंग, फॉर अदर्स ऑफ यू इट विल बी वर्किंग, द सिचुएशन विल इम्प्रूव एंड परफेक्ट टाइम, ओके। सो लीव इट ऑन परफेक्ट टाइम, इट्स ऑल अ मैटर ऑफ टाइम। सो आपकी मैनिफेस्टेशन वर्क कर रही है कुछ लोगों के लिए अभी, और कुछ लोगों की करेगी, सिचुएशन इंप्रूव हो रही है और होगी, लेकिन इसको एक राइट टाइम पे ये होगा, ठीक है। इसको भगवान पे छोड़ दो, लीव इट ऑन डिवाइन टाइम। और अगर आपने किसी को होल्ड ऑन कराया, वेट कराई जा रहे हो, तो फिर वो राइट टाइम आपको लाना है, आपको एक्शन लेना है, तभी राइट टाइम होता है। राइट टाइम ऐसा नहीं है कि आप वेट करवाते रहो, वेट करने से नहीं होता। अगर ये एक्शन आपको लेना है, यू हैव टू टेक एक्शन एंड द टाइम इज़ हियर एंड नाउ। इफ़ यू आर होल्डिंग समवन, putting someone on hold, then it is your duty to right away take an action. So because this card is often talking about clear communication, taking action, and the time is here and now, because once you are ready, you take action, and then the situation will improve and your manifestation will turn into reality. If this is you, that you need to take action, you need to be passionate about your desires. That's how manifestation works. So might be someone is not ready at the right time, they will be ready if you are asking about someone, or this can be your energy that you need to believe in divine timing and keep doing what you're doing, and everything has its right time, and surrender to divine's plan and God's timing, but the situation will improve. Your manifestation is working in your favor and it will work, okay. So keep healing yourself and stay positive and surrender to divine time and take care of the guidance. So yeah, कुछ आपको बस हर इंसान का एक अपना समय है, हर एक का
उसके लिए आप अगर डिटेल में जानना चाहते हो तो पर्सनल सेशन के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम में कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी आप मेरा डेली लाइफ सेशन ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको अपने अपने टाइमिंग का पता चल सकता है। उसमें मैं पर्सनल आंसर्स देती हूँ, अपडेट्स देती हूँ। उसमें आके आप एंजेलिक प्रोडक्ट चैनल पे अगर आप पूछना चाहें आप पूछ सकते हैं, ठीक है। वो मेरा फर्स्ट चैनल है। ऑलराइट, सो या आपकी मैनिफेस्टेशन वर्क कर रही है और करेगी, सिचुएशन इंप्रूव होगी। आपको बस ये जो गाइडेंस आ रही है उसको फॉलो करना है। सो इट्स ऑल अबाउट सही समय की बात है, बस हर एक का अपना अपने समय है। अगर आप किसी को बहुत वेट करा रहे हो तो फिर उस केस में आपको वेट नहीं कराना किसी को, आपको एक्शन लेना है। टाइम आता नहीं है, आपको लाना पड़ता है। अगर ये डिसीजन जो भी है आपके हाथ में है तो इसके लिए एक्शन आपको अभी की अभी लेना है। तो टाइम की वेट नहीं करनी होती, टाइम लाना पड़ता है। एक्शन लो तो टाइम उसी वक्त आ जाता है। सो अगर आप किसी को वेट करा रहे हो तो आपको एक्शन लेना है, और जैसे आप एक्शन लोगे तो वो आपका काम हो जाएगा, मैनिफेस्ट हो जाएगा। और अगर मान लो आप किसी को वेट कराई जा रहे हो तो वो उल्टा एनर्जीज ख़राब कर रहा है, वो टॉक्सिक एनर्जीज क्रिएट कर रहा है, क्योंकि वो डिलेज आप क्रिएट कर रहे हो। अगर ये आप कर रहे हो तो, और अगर आप नहीं कर रहे हो, आपकी तरफ से कोई भी एनर्जी है जो ये डिले को क्रिएट कर रही है, जिसमें हार्शनेस ला रही है, जो भी इंटरफेरेंसेस हैं, तो वो आपका मैनिफेस्टेशन ख़राब कर रही है। आपको वो अलाउ नहीं करना उसको। ये आपका डिसीजन है, आपकी लाइफ है, आपको एक्शन लेना है लविंगली, क्लियर कम्युनिकेशन के साथ। आपको कोई भी आउटसाइड इन्फ्लुएंस नहीं लाने देना बीच में। आपको आगे एक्शन लेना, आपको आगे बढ़ के स्टेप फॉरवर्ड करना, सिचुएशन को ठीक करना अगर आपने ख़राब की है तो, अगर ये आपकी तरफ से एनर्जी है और आपको मालूम है आप क्या मांग रहे हो। So please don't allow the outside factors to influence your manifestation to turn into reality. Be in your positive aura, in your healthy energies in order to attract what you are wanting, what you are manifesting. If you are like falling prey to others' energies, and which is why you are impacting your own decisions of life, please don't do that. That's causing blockage and delays. Don't do that, okay? किसी की बातों में आके या किसी की एनर्जी लेकर अपनी पैरों पे खुद कुल्हाड़ी नहीं मारनी है, ठीक है। अपना प्यार से बात करना, अपनी अच्छी एनर्जी में रहना, लविंगली डील करना, खुद एक्शन लेके आगे बढ़ के जो भी आप करना चाहते हो उसमें एक्शन लें। अगर ये आपका डिसीजन है, आपके हाथ में है, तो कोई आपको किसी को अलाउ मत करो कि किसी की एनर्जी आपकी मैनिफेस्टेशन को रोके। अगर ये एक्शन डिसीजन आपके हाथ में है तो, अगर ये आपके हाथ में नहीं है, आप किसी की वेट कर रहे हो, अगर आप किसी को वेट नहीं करा रहे हो, आप किसी की वेट कर रहे हो और वो नहीं कर रहा, वहाँ से ऐसी कोई एनर्जी है, फिर उस केस में आपको पॉजिटिव रहना है, अपनी हीलिंग पे फोकस करना है। इसको टाइम पे सरेंडर कर दो और अपना ध्यान रखो। जिनके साथ भी आपकी डीलिंग्स हैं, जो भी है, प्यार से रहो, पॉजिटिव रहो, ठीक है। अपनी एनर्जी क्लियर आउट करो, कट द कॉर्ड विद दोज जहाँ से अच्छी एनर्जीज नहीं आ रही हैं। रिलीज व्हाट इज़ नॉट सर्विंग यू, कट द कॉर्ड विद नेगेटिव एनर्जीज फ्रॉम वेयर एवर इट इज़ कमिंग यू, विच इज़ इम्पैक्टिंग योर मैनिफेस्टेशन, ओके। सो जहाँ से भी आपको अच्छी एनर्जी नहीं आ रही वहाँ से कॉर्ड कटिंग करो और अपनी लविंग एनर्जी में रहो, ताकि आप अपनी मैनिफेस्टेशन को ट्रू कर सकें, ठीक है। सो ट्रस्ट, so the bottom line is trusting. So trust the signs given by universe. Universe is giving you signs. So it's strongly angels are talking about giving the universe is giving the signs. Trust the signs given by universe. Okay. Be enlightened. I'm strongly getting an energy of enlightenment, awakenings. Okay. It's all about trust. You need to trust someone, or you need to build the trust, or you need to trust. या तो आपको अपना हर हाल में विश्वास बना के रखना है। आपके डर हो सकते हैं, आपकी इनसिक्योरिटीज़ हो सकती हैं, आपको हर हाल में भरोसा रखना है और कि भगवान हर अपने समय पर मुझे जो मेरी किस्मत में है वो मेरे राइट टाइम में खुद मुझे मिल जाएगा। भरोसा रखना है, पॉजिटिव रहना है, अपनी एनर्जीज क्लियर रखो, हीलिंग रखो अपनी। और अगर आपको किसी का विश्वास बनाना है, आपने किसी का विश्वास तोड़ा, तो आपको विश्वास बनाना है। विश्वास बनता कैसे है? बात करने से, क्लियरली, प्यार से समझाने से। किसी को अगर आप कोई अच्छी एनर्जीज नहीं भेज रहे हो तो उसको प्यार से अच्छी एनर्जीज भेजोगे, तभी आपकी मैनिफेस्टेशन वर्क करेगी ना। अगर आप किसी को किसी और की बुरी, मान लो फॉर एग्जांपल आप किसी थर्ड पर्सन की बैड एनर्जी आप किसी को ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो आप अपने किसी और की वजह से किसी और के साथ बिगाड़ रहे हो। किसी और की एनर्जी अपने जो आप चाह रहे हो उसके बीच में, रास्ते में ला रहे हो, तो वो आपकी फॉर एग्जांपल आपकी पास्ट नेगेटिव एनर्जी आपकी प्रेजेंट
सिचुएशन को हेल्दी, मान लो आपका प्रेजेंट रिलेशन है बहुत हेल्दी है, लेकिन आप पास्ट रिलेशनशिप की नेगेटिविटी या कोई भी थर्ड पर्सन की नेगेटिविटी अपने प्रेजेंट रिलेशन में लाके उसको बिना वजह ख़राब कर रहे हो, तो वो नहीं करना। अपना विश्वास बनाना भी है आपको, किसी को अगर सिक्योर फील कराने की ज़रूरत है वो कराना होगा, विश्वास बनाना होता है, तभी सामने वाला आपके साथ पेशेंस रखता है और आपको समझता है और आपका साथ देता है। विश्वास बनाओ। और अगर आपकी एनर्जी कि आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, आप विश्वास करना नहीं जानते हो, तो विश्वास करना भी सीखना होता है। इतना डाउट करोगे, इतनी नेगेटिव माइंडसेट में रहोगे, इतना हार्श एनर्जी में रहोगे, अगर ये आपकी है तो आप गुस्से में आके रिएक्ट करते हो, तो आप सारी चीज़ें खुद ही ख़राब कर रहे हो, क्योंकि आपकी खुद की एनर्जी इस पॉजिटिव नहीं है, आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। तो ट्रस्ट करना भी सीखना होता है। एंजल साइंस दे रहे हैं आपको कि कहाँ से आपको कॉर्ड कटिंग की ज़रूरत है, कहाँ पर आपको प्यार से डील करने की ज़रूरत है, और किसको समय देने की ज़रूरत है, किसको समय नहीं देने की ज़रूरत है। तो टाइम मैनेजमेंट भी एक मैसेज है कि हर चीज़ का टाइम पता होना चाहिए, प्रायोरिटीज़ क्या है, किस चीज़ का क्या टाइम है, तो क्या प्रायोरिटी है कि इस टाइम पे क्या करना ज़रूरी है, किसको टाइम देना ज़्यादा ज़रूरी है, किसको नहीं। जो चीज़ें आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई ऐसे काम होते हैं जो लाइफ टाइम चल रहे हैं, वो तो कभी भी हो सकते हैं, लेकिन इस टाइम पे क्या ज़रूरी है, अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट है, व्हाट इज़ द प्रायोरिटी, व्हाट इज़ द नीड ऑफ द आवर, क्या ज़रूरी है वो करना है, ताकि आप उसको बाद में ना खो दो, सो दैट यू शुड रिग्रेट लेटर ऑन दैट व्हेन इट वाज द राइट टाइम यू डिडंट डू दैट। सो ऑलवेज टेक केयर ऑफ व्हाट इज things should be done well on time. You should not delay so much that you'll regret later on that when it was the right time you didn't do that. So don't delay so much, something like that. And rest, if you are finding delays in something, trust the divine timing. And if you are delaying yourself, you need to take action. And if you something which is beyond your control, then leave it on divine time. So जो चीज़ें आपके हाथ में नहीं है, भगवान के हाथ में छोड़ दो, सरेंडर कर दो। हर चीज़ अपने समय में होती है। अगर डिलेज आपको लग रहे हैं, जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है, बाकी प्यार से जो हो सकता है उसको करो। और अगर आप डिलेज खुद क्रिएट कर रहे हो तो आपको एक्शन लेना है, तो टाइम राइट हियर राइट नाउ होगा। पॉजिटिव रह के विश्वास करके करो। और अगर आप किसी की वेट कर रहे हो कि कोई एक्शन नहीं ले रहा, तो आपको पॉजिटिव रहना है, समय पर छोड़ दो, भगवान पे भरोसा रखो, बस अपना खुश रहो, अपनी एनर्जी अच्छी रखो, ठीक है। यूनिवर्स आपको साइंस दे रहा है और देता रहेगा, पर जितना आप खुश रहोगे उतना ही खुशी बांटोगे, जितना हील होगे उतना दूसरों को हील करोगे। और मान लो अगर कोई सामने वाला आपको इतनी अच्छी एनर्जीज भेज रहा है, लेकिन आप उसको बदले में वो अच्छी एनर्जीज नहीं दे रहे हो, तो आपका फ़र्ज़ है उसको अच्छी एनर्जीज गिव बैक करना। और अगर आप किसी को कर रहे हो लेकिन वो आपको नहीं दे रहा, फिर आपको अपनी एनर्जी में रहना, अपना ऑरा प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। सो लेकिन आपकी एनर्जीज, आपकी मैनिफेस्टेशन वर्क कर रही है और करेगी, लेकिन ये साथ में गाइडेंस है। सो दिस इज़ अ ब्यूटिफुल रीडिंग। ऑल यू नीड टू डू, टेक केयर ऑफ दिस गाइडेंस, टेक केयर ऑफ what you are required to do in order to convert your manifestation into reality. You've got the guidance, and this is a positive reading that you will enjoy success. So the bottom line is enjoy success and happiness. So keep succeeding, keep progressing, and stay happy. Be in your beautiful positive energies, and the sun is rising and the sun will rise. This is all about awakenings, clarity, healing, positivity. So this is the guidance, and in order to make your manifestation turn into reality, plus this is a confirmation that your manifestation is turning into reality. Yes, and it will work, it will happen, okay. So you need to, the situation will improve. So remain positive and leave it on divine timing, perfect timing, and trust is a big thing. And deal with loving energies lovingly, deal face to face, clear communication, and don't react. Get the clarity, give the clarity. So that's all for you. I hope you like this video. Make sure to hit the thumbs up, subscribe to the channel so that you can be notified about my upcoming videos. You can hit the notification bell as well. You can suggest your feedback, you can suggest your topics. I will make videos on those topics for you, and you can also share your comments in the comment section. So be grateful to universe, and I'll see you in the next video. God bless you. भगवान को, यूनिवर्स को थैंक यू बोल दें, और आप अपने सजेस्ट कर सकते हैं टॉपिक्स, मैं आपको उन टॉपिक्स पे भी वीडियोस आगे ले आऊँगी आपके लिए। सो कंग्रेचुलेशन, आपकी रीडिंग पॉजिटिव है, लेकिन गाइडेंस ज़रूरी फॉलो करनी है। जितनी फॉलो करोगे उतना ही आपकी मैनिफेस्टेशन फास्ट वर्क करेगी। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, लाइक सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आगे मेरी आने वाली और वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहे। सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।
Hi, card number 2. Welcome to your reading. So, your card speaks Magic Guardian, unlock the magic within. So, right off the bat, and this is talking about unlocking something, unlocking, unblocking, might be something related to some blockage like unblock, unlock, something like that. The magic within. Okay, you need to unlock your hidden potential, your inner power, believe in your inner strength, inner potential, and that's how you can bring in magical results. Probably you need to guard your energy. You can see this card is dark, it's black energy. So I don't know why usually I don't say this, but I'm sure you are getting that energy, some black energy, something like somebody, I don't want to speak such words, I usually don't, but something like that. It can resonate for some of you, not all of you, but it's just that you're somewhere there is some dark energy within you or around you, or it can be someone particular, uh, from wherever this dark energy is coming, which is, creating some blockage, and you need to probably clear that energy in order to remove the blockage and unlock the possibilities to your magical transformation, which can turn your manifestation into reality. So something related to angels. Okay, this can be literally any female for some of you who is not in a good healthy energy, who is causing this energy to spreading this energy to someone around the situation, or transferring this energy to someone, because look at this lady, she's doing some spells. So be aware, this can, if you are doing this is not your good energy, don't do that, because this energy is backfiring you. And if this is someone else's energy which is coming from your side around your manifestation, it can be from anywhere, which is causing this energy to you, or which is blocking your manifestation turning into reality. It can be from anywhere around you, which is not letting your manifestation happen, which is causing blockage. So be aware of that. Do some, you need to cleanse your aura. कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है नज़र उतारनी, आपको अपनी नज़र उतारनी है, कोई धुनी कर लो, कोई हवन करवा लो। ये कोई डार्क एनर्जी आपकी खुद की हो सकती है, आपके आसपास कहीं से भी हो सकती है, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उसका रास्ते में आ रही है, तो आपको कुछ अनलॉक करने की एनर्जी है, वो ब्लॉकेज रिमूव करने की ज़रूरत है। ठीक है, ऑरा क्लेंजिंग ज़रूरी है। लिटरली ये एंजल्स को लेकर कुछ हो रहा है, आई डोंट नो, स्पिरिट्स की एनर्जी कुछ आ रही है। अगर किसी के केस में कोई पास्ड अवे है तो आपको पता ये क्या है, या फिर कोई ये पास्ट की एनर्जी हो सकती है कि पास से कोई ट्रॉमास या कोई वुंड्स हैं या कुछ भी हो सकता है, आपको समझना ये क्या है। लेकिन किसी को तो आई डोंट नो, यहाँ पर मुझे कुछ लोगों के लिए फ्लाई की एनर्जी आ रही है, यू नीड टू, जिसको किसी को फ्लाई अवे करने की एनर्जी है। लेट्स सी व्हाट एल्स नाउ, लेट्स सी इज योर मैनिफेस्टेशन टर्निंग इनटू रियलिटी। ओके, द फर्स्ट कार्ड वी हैव इज वेट। ओके, meditation brings answer. So you need to meditate and sit alone, deep contemplation, introspection, and that will give you clarity. It's like listening to your intuition, listening to your inner voice. When you meditate, you sit alone, spend some time alone with yourself and listen to your own heart and in gut feeling what it is telling you. Universe guides you, it gives you answers from within your, that's a message I'm feeling. Recovery, so probably some sort of recovery is going to happen, or it is required. Okay, abundance, so might be there is abundance in some form, might be there is abundant opportunities available to you, or somebody is having abundant opportunities, or might be something related to money, somebody is abundant. I'm strongly getting energy of flying here, like somebody wants to fly, but there is some dark energy, and someone like offering abundance to someone, and somebody is already abundant or having that abundance, and they are afraid of losing that. Like somebody is wanting to offer this abundance to someone, but this person, see, this is like a feeling of lack, worried of losing.
something like that. So there can be two pictures, one, it can be two people also, like one person is abundant, very beautiful angel like healed energy, very bright angel, abundant, and other person is like dark energy and like not good energies. So you know what it is. And I just see, look at the way this card fell down. So probably you need to drop this energy, you need to drop this option from wherever it's coming. Okay, that's affecting this beautiful energy. So you know what it is. Please connect the dots with your situation. I'm sure universe is giving you some sign, some gesture. So please cooperate. I will be speaking in both languages, English and Hindi. So आपको वेट करने को बोल रहे हैं, कहीं से कुछ ठीक नहीं है अब, ये चाहे आपकी एनर्जी हो या कुछ भी हो सकता है, यूनिवर्स आपको साइंस दे रही है। और अकेले बैठ के अगर ये आपकी हेल्थ है तो आप अपनी हेल्थ की रिकवरी पे ध्यान दो, अपना ऑरा प्रोटेक्ट करो, ठीक है, अपनी हीलिंग पे फोकस करो, मेडिटेशन करो, अपनी रिकवरी करो, ठीक है। और यहाँ कोई लॉसेस है हेल्थ को लेकर नहीं है, जिस चीज़ का भी लॉस है वो रिकवरी होगी, आपको करनी है मेडिटेशन या अकेले बैठ के सोचना, विचार करना, क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ठीक है, थोड़ी क्लैरिटी, एनलाइटनमेंट, कुछ ऐसा मैसेज। ओके, कुछ चीज़ें आप नहीं देख पा रहे हो, आपको दिखने की ज़रूरत है, ठीक है, आपको कुदरत रोशनी डालेगी या किसी भी रूप में आप वो चीज़ों को लेकर क्लियर हो सकते हो, ठीक है। पैसे को लेकर कुछ हो सकता है, अबंडेंस को लेकर, या तो यहाँ पर कोई ऑलरेडी अबंडेंट है या फिर अबंडेंस में कुछ हो, है ना। फॉर एग्जाम्पल आप कोई काम करना चाह रहे हो, वहाँ पर काफ़ी अबंडेंट अपॉर्चुनिटीज़ है, कंपटीशन है, या फिर कोई पैसे का मसला हो। और अगर आपके पास कोई दो चॉइसेस हैं, लेट्स सपोज एक की एनर्जी डार्क है, एक बहुत ब्राइट है, आपको राइट एनर्जी चूज़ करनी है, कहाँ अच्छी एनर्जी आ रही है, किस रास्ते चलना है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जहाँ आपकी रिकवरी के चांसेस हैं और जहाँ नई चांसेस हैं, तो कुछ सेकंड चांसेस की एनर्जी भी आ रही है, रीट्राई की एनर्जी भी है, गेट मोर इन्फॉर्मेशन, ask for help from others, no need to worry, reconsider. And I was telling you, this is the energy of second chances or retrying, reconsidering whatever you are manifesting. Be assertive. So yeah, you need to stand up for what is right for you. I'm surely getting this energy. So you need to think over it again, get to know more. Might be you need to take someone's help. If someone is helping you, take the help. If you are not helping someone, please help someone. So either you need to take the help or you need to give help, whatever it is, but you need to think over it again. You can take someone's help. Another message I'm getting, if you are let's suppose you are helping someone who is asking for your help, and you are giving someone second chances, don't be too good to someone. Stand up for what is right for you, and don't allow something which is not right for you, and do what is right for you. Choose rightly, choose wisely, choose the right thing. And whatever you are resisting, please think over it again, and whatever you are accepting, please think over it again. So that's an energy. So but you need not to worry, no need to worry. In the near future, it might be, I'm again in this pile, I'm strongly seeing again and again someone wanting to fly somewhere, some two people flying together. It's an energy. I don't know how does it match. Might be you need to fly somewhere, you need to reach out to someone in order to bring this recovery. Might be to get some more information, taking someone's help or giving someone help. You need to stand up for your decision. You don't have to allow anyone to impact your decisions. It's your decisions. Stand up for what is right. Okay, it's a no right now, whatever you're manifesting. So there is some negativity around, there is some resistance. It's up to you. So it is, angels are clearly giving this, you are the, I'm hearing, you are responsible for what you choose. It's completely up to you what you choose to be wherever you go. It's the results according to your how you are working. It's up to you what you are choosing. You need to stand up for one thing. Might be you are having choices. Okay, not the right time. So this is not the right time for your manifestation to turn into reality. Listen to your intuition, and that's what I was saying. Listen to your heart.
Probably if you guys are using your mind a lot, you are overthinking, you are using your mind a lot, judgments, mind judgments, somebody playing mind games, some judgments. If this is from your side, you are doing that, please don't do that. If it's not yours, it can be anything around you. So listen to your heart, listen to your intuition from wherever this energy is coming. You know what it is. Sometimes the wrong people can impact the good people. Sometimes we are good, but we are like, sometimes, let's suppose person A or person B. Person A is a very positive person, but due to person B's energy, negative energy, it affects person A's energy. So I'm just giving an example. So take it as it resonates. So within next few weeks, something is going to happen. Okay. So you need to let go of something which is not serving you. So because that's blocking your manifestation. And if you believe, so you are not believing. So because manifestation works only when you believe, when your belief system is stronger, when you have strong faith, when you are having trust issues, you are not attracting what you want. So you need to clear this energy. If it's yours, clear this energy. And or if you're not giving time to something, you need to give time to something. You need to first you need to believe, and then if you need to build your trust towards someone, you're not giving time to something or someone, you need to give it time. You need to build that faith. You need to let go of what's not right, and that's how you can recover the losses. And no need to worry, but you can think over it something again. But listen to your heart and stand up for what is right. Be assertive. Okay, so it's completely up to you what you choose, and accordingly are your results. So this is a message to you, God is giving you. I'm sure this is going to help you. ओके, सो अभी तक इतना ही समझ आ रहा है कि आपकी मैनिफेस्टेशन अभी वर्क नहीं कर रही है, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिविटी है, या कहीं से कोई मना कर रहा है, कोई, या आप इसको रोक रहे हो, या तो ये मैनिफेस्टेशन जो पूरी नहीं हो पा रही आप इसको खुद ही रोक रहे हो, आप खुद ही इसमें अपनी नेगेटिविटी ला रहे हो, आप ही खुद ही रोक रहे हो, आपका बिलीफ सिस्टम, आप खुद ही इसको नो बोल रहे हो। आपको एक बार इस पर दोबारा विचार करने की ज़रूरत है, या फिर अगर आप किसी को लेकर पूछ रहे हो तो वो इस पर दोबारा विचार कर रहा हो, अभी नहीं, कोई किसी चीज़ को रिकन्सिडर कर रहा हो, ये कुछ भी हो सकता है। अपनी सिचुएशन के हिसाब से समझो आप क्या पूछ रहे हैं। सो इट्स कम्प्लीटली डिपेंडिंग अपॉन पर्सन टू पर्सन, एवरीबडी इज हैविंग देयर ओन सिचुएशन सर्कमस्टांसेस, सिंस इट्स अ जनरल रीडिंग। सो प्लीज़ रेजोनेट, वट एवर रेजोनेट्स विद यू, टेक इट अकॉर्डिंगली एंड लिसन टू योर गट फीलिंग, वॉट एंजल्स आर गिविंग यू जेस्चर। सो या आपको मैसेजेस आ रहे हैं, हर एक की अपनी सिचुएशन है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। आपके सामने कार्ड्स हैं, आपको खुद समझना है, अपनी इंट्यूशन को सुने। एंजल्स इसके थ्रू आपको क्या इशारा दे रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, कि या तो कोई यहाँ पर किसी और चीज़ को कंसिडर कर रहा है, कोई किसी को दोबारा से कोई दूसरा मौका दे रहा है, कोई किस चीज़ को दोबारा रिकन्सिडर कर रहा है, या तो आपको करने की ज़रूरत है, किसी ने आपको मना कर दिया, या आप किसी चीज़ को मना कर रहे हो, जो भी है, ठीक है। लेकिन आपको वो स्टैंड लेना है, बी असर्टिव, भटकना नहीं है। अगर आपके आगे चॉइसेस, आपको भटकना नहीं है। आपके हाथ में चाबी है, देखो आपके हाथ में चाबी है। आप चाहो तो स्टैंड लो, तो सब आप सोल्यूशन ढूंढ सकते हो, ठीक है। आपको एक स्टैंड लेना है, ठीक है। and that's why you chose this card, unlocking energy, like we got this energy since you have this key to unlock the magic within. Okay, so you need to stand up for the decisions of your life. If you are permitting someone, you are depending upon someone for the decisions of your life, if someone is controlling you from wherever this negative energy is coming, which is not letting you progress towards your manifestations turning into reality, don't allow that. Okay, stand up for what is right. Okay, don't like fall prey to, don't get trapped in other energies. Like let's suppose you're asking somebody else, should I do this, should I do that? If you're taking someone else energy, like someone is guiding you wrong way, so you need to stand up for what is right. Okay, that's an energy. आप किसी की बातों में आते हो, किसी को कुछ पूछते हो, तुम बताओ ऐसा होगा वैसा होगा, मतलब आप किसी की एनर्जी ले रहे हो। आपको नहीं ऐसा करना, किसी पे डिपेंड नहीं होना। आपकी लाइफ है, आपको खुद का स्टैंड लेना है, ठीक है। अपनी लाइफ के लिए डिपेंड नहीं होना। आपके हाथ में चाबी है, आप चाहो तो हर ताले की चाबी आपके हाथ में है, कुछ ऐसा मैसेज है। अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करो। आपके दिल से क्या आवाज़ आती है, आपका दिल क्या कहता है, आपकी अंतरात्मा क्या कहती है, क्योंकि हर एक की अंतरात्मा जानती है उसके अंदर
कि वो क्या कर रहा है। तो बिल्कुल आपके ऊपर है, आपको इस सिचुएशन में क्या करना है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अब आपको डिसाइड करना है, आपको किसी चीज़ पे दोबारा विचार करना है, या तो कोई किसी चीज़ पे दोबारा विचार कर रहा है, और अगर का आप कुछ दोबारा कंसिडर कर रहे हो लेकिन फिर भी वहाँ पर बात नहीं बन रही है, लेट्स सपोज आप कुछ रिकंसिडर कर रहे हो लेकिन फिर भी वहाँ पर चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं, फिर वो नहीं करेंगी। आपको फिर उस केस में टेंशन क्रिएट नहीं करनी है, ठीक है। एक बार फिर से सोचो, और अगर आपने किसी को मना कर दिया और आपको उसको एक बार दोबारा कंसिडर करने की ज़रूरत है तो करो, ठीक है, कुछ ऐसा। और अगर कोई और किसी चीज़ को रिकंसिडर कर रहा है, सेकंड चांसेस दे रहा है, आपको नहीं दे रहा, तो फिर आपको अपना स्टैंड लेना है। सो जैसे मैच करे, हर एक की अपनी सिचुएशन है, अपनी सिचुएशन के हिसाब से समझें आपको क्या मैसेज आ रहा है। बट कार्ड्स आपको मैं दिखा रही हूँ, ठीक है। विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स, कुछ हफ्तों के बाद कुछ होगा। अभी एंजल्स आपको वेट करने को बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन मेडिटेशन करो, और अगर हेल्थ ठीक नहीं है तो हीलिंग के लिए किसी को कांटेक्ट कर सकते हो, कोई डॉक्टर को दिखाना है, या कोई काउंसलिंग, हीलिंग, कुछ भी ऐसा। पैसे को लेकर कुछ दिख रहा है, किसी चीज़ की अबंडेंस कार्ड यूजुअली पैसे को लेकर बोलता है, बट मेरा मानना है फॉर एग्जांपल किसी चीज़ में कंपटीशन है, अबंडेंट पीपल है ना, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पैसा बहुत ज़्यादा है, किसी का लोन हो, या प्राइस बहुत ज़्यादा हो, या किसी को पैसे का लालच हो, या किसी को कोई ड्रीम्स अचीव करने हैं, पैसा चाहिए, कुछ ऐसा, है ना। या फिर कोई ऑलरेडी पैसे वाला है जिसकी कोई मदद ले रहा है, कोई आई डोंट नो, कुछ अनड्यू एडवांटेज ले रहा है, कोई मैजिक की एनर्जी आपको समझ आ रही है। आई एम श्योर, मैं बोलना नहीं चाह रही हूँ, लेकिन कोई डार्क एनर्जी, कोई मैजिक, आई डोंट नो कैसे मैच करें, लेकिन कुछ है। कोई जैसे किसी पे कोई जादू कर रहा है ना, कि उसकी अबंडेंस पे हाथ डालना। अब देखो, कुछ ऐसा मैसेज भी मुझे आया कुछ लोगों के लिए। अगर कोई अबंडेंट है तो उसको कोई लोग चेस कर रहे हो, या फिर किसी की हेल्थ इशू है, किसी को, ये हर इंसान के लिए अलग अलग हिसाब से मैच करेगा। अगर कोई रिलेशनशिप को पूछ रहा है, मान लो कुछ लोगों के लिए किसी की तबीयत ठीक नहीं है, तो आपके अंदर बहुत कोई डार्क एनर्जी है, कुछ आपके लिए वर्क नहीं कर रहा। फॉर एग्जांपल कोई डॉक्टर सही नहीं है, या कोई ट्रीटमेंट सही नहीं है, जो भी चीज़ सही नहीं है उसको लेट गो कर दो, जहाँ से भी अच्छी एनर्जी नहीं आ रही, ठीक है। और तभी रिकवरी होगी, तभी आपकी सिचुएशन में रिकवरी होगी। मेडिटेशन हो सकता है, कोई बेटर ट्रीटमेंट, कोई बेटर मेडिसिन, मान लो कोई दवाई महंगी है या बहुत पैसा लगेगा, फॉर एग्जांपल किसी को ऑपरेशन कराना है, तो अभी कोई और इन्फॉर्मेशन लो, या जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उसमें आपको कोई क्लैरिटी नहीं है और इन्फॉर्मेशन लेनी। अभी या तो आप किसी को टाइम नहीं दे रहे, टाइम देने की ज़रूरत है, या फिर अभी टाइम साथ नहीं है। सो कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, आपको विश्वास करने की ज़रूरत है कि आपके लिए क्या सही है, ठीक है। आपका बिलीफ सिस्टम जैसा होगा वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट करोगे, वैसे रिजल्ट्स अट्रैक्ट करोगे। सो ये आपके लिए मैसेजेस हैं, ठीक है। आपको लेकिन अपना स्टैंड रखना है। सो लेकिन हाँ, इन द नियर फ्यूचर कुछ हो सकता है, ओके, नो नीड टू वरी। अगर आपने किसी को कोई वरी दी है तो उसकी वरी दूर करो, और आप वरीड हो तो वरी मत करो, कुछ ना कुछ आपको एंजल साइंस देंगे। मेडिटेशन ज़रूरी है, या फिर तो अपनी हीलिंग करो, या कोई हीलिंग पे फोकस कर रहा है, किसी की तबीयत ठीक ना हो, ठीक है, कुछ ऐसी एनर्जीज हैं, ऑलराइट। माइट भी कभी कभी टाइम साथ नहीं देता, या किसी के पास टाइम नहीं है, कोई काम में बिजी रहता हो, किसी को अपने हार्ड वर्क कर रहा है, कोई काम में बिजी है। सो अलग अलग एनर्जीज आ रही हैं, आपको समझना ये क्या है। जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उसको लेके ये आपको आंसर्स आए हैं, गाइडेंस आई है। सो आई होप ये आपको मैच कर रहा है और आपको हेल्प कर रहा है, ओके। सो फार दिस इज़ अ मैसेज फॉर यू दैट regarding your manifestation, these are the clear messages right in front of you, and guidance as well. Make sure, understand according to the cards, whatever it is saying to you. Understand the gesture of universe regarding whatever they are guiding you through. So make sure you follow the guidance. It will help you to
change your energies and do what is right for you so that you can attract what you're wanting and so that you can turn your manifestation into reality. Okay, so फिलहाल तो आपके लिए ये मैसेज है कि आपको अपनी मैनिफेस्टेशन को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए जो भी मैसेज आ रहे हैं, एंजल्स जो भी आपको गाइड कर रहे हैं, जितना आप उसको फॉलो करोगे उतना आपके लिए अच्छा है, तो उतना ही आप सही रास्ते चलोगे, तो आपकी मैनिफेस्टेशन फ्यूचर में होपफुली होगी। घबराने की, टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन बिल्कुल आपके ऊपर है आप कैसे सिचुएशन को डील करते हो, आप क्या चूज़ करते हो। ठीक है, बाकी वर्क करो, जो भी आया है ज़रूर करो, जितना गाइडेंस फॉलो करते हो वो आपको सही रास्ते ले जाती है और आपकी मैनिफेस्टेशन रियलिटी में कन्वर्ट करने को हेल्प करती है। सो आज के लिए इतना ही। दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। मे गॉड ब्लेस यू। बाकी अगर आपको और क्वेश्चंस पे रीडिंग्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपने टॉपिक सजेस्ट कर सकते हो, मैं उसमें वीडियोस बना दूंगी। बाकी मैं डेली लाइव सेशंस करती हूँ अपने फर्स्ट चैनल एंजेलिक रीडर, आप ये देख सकते हैं, ये मेरा फर्स्ट चैनल है, इस पर आप लाइव सेशन मैं डेली लाइव आती हूँ। यहाँ पर आके आप अपनी अपडेट लेना चाहें कभी भी ले सकते हो, मैं रोज़ आती हूँ। सो इफ़ यू आर न्यू जॉइनिंग हेयर and you can join my first channel angelic reader where I keep coming live every day, and you can just join in for your updates regarding any question of your life in everyday life. Rest, I will be posting detailed videos over here. You can suggest me the topics in the comment section. I will upload more videos for you. And remember, tarot cards give you energies, possibilities. It's not the end of the world. So energies can always change. The more you change your energies, you take right decisions, you walk on the right path, do what angels are guiding you towards, the more you can take your life towards positivity and make it happen in the future. Energies can always change. Rest, suggest me the topics, I will upload videos on those topics for you. Stay notified, make sure you subscribe the channel and hit the notification bell so that you are notified about my upcoming videos, and I will bring in more videos for you guys. So till then, take good care of yourself. God bless you. Bye bye. Take care. Bye bye.